Hello students, let us start to do question number uh, 5 because up to question number 4 we have solved in the last video. So this is question number 5 of exercise 12.1 and question number 5. Sides of a triangle are in the ratio 12, 17 and 25 and perimeter is 540 centimeter. So ratio of sides are given. Ratio of sides equal to 12, 17 and 25. तो लेट कर लें हम कि लेट द sides be 12x, 17x and 25x. Okay. After this, perimeter is given. Perimeter of triangle equal to 540 centimeter. Okay. So you know that perimeter of triangle means the sum of the sides. So we can write that ki 12x plus 17x plus 25x equal to 540. On the addition we will see that ki it will be 54. 54x equal to 540 and therefore we can get the value of x and it should be the value of x is 10. Now the sides are, first one was 12x, it means 12 into 10, that is 120 centimeter, and 17x, 17 into 10, and that is 170 centimeter. 25x, that is 25 into 10, and it equal to 250 centimeter. Now originally we get the sides, and by using the Heron method we can get the area of this triangle. So to get the area, to use the Heron method, at first we have to find out the S. S, that is called semi-perimeter, a plus b plus c by 2, and here it will be 120 plus 170 and plus 250 upon 2, and you know that the sum is 540. In doing so we will get 270. So the value of S equal to 270. Okay. After this, just use the formula to get the area, because the area formula of area is S into A, S minus A, S minus B and S minus C. S is 270 and this is 270 minus 150, 170, 150 and 250. So first one was 120, second one was 150 and third one was 250. Okay, 12, 17 and 25. Now solve this. It will give 270. 270 minus 120 is 150. This is 120 and this is 20. 17, 100, this is 120, then 170, sorry, this will be 170. So here it is this 100 and 20. After factorization we will get 3 into 3, 3 3s are 9 and 9 3s are 27. 150 can be break 3, 30 into 5.
Okay, and 100 can be written as 5 into 20, and this is also 20. Now check it to make the pair. 2 threes, that is 3 is outside the root sign. 30, 230, so 130 is outside the root sign. 2 5 will gives a single 5, and 220 will gives a 20. So now it is 100, 100 into 3, 300, 300 into 3, 9000 centimeter square. So this is the answer of the question number 5 of exercise 12.1. Now for the next question, this is question number 6. Look the question. Question is, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर के। कुछ इस तरह से अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर, इसको x ले लिया क्योंकि ये पता नहीं है, और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर है, तो 12 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 30 एंड 12 प्लस 12 24 प्लस x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 माइनस 24, x इक्वल टू 6. तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x. अब x की वैल्यू है तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द हेरोन मेथड. अगेन हियर इन दिस क्वेश्चन the sides are 12 and 6. S equal to a plus b plus c by 2, that is 12 plus 12 plus 6 by 2. 30 by 2, it gives 15. अब एरिया निकालना है इसका, तो एरिया के लिए फॉर्मूला पता है, s इंटू एस माइनस ए, s minus b and s minus c. At the place of s we will write 15, so this is 15 minus 12, again 15 minus 12 and 15 minus 6. 15 minus 12 is 3, again 3 and 9. 15 is 3 into 5, 3, 3, 3 and 3. अब पेयर बनाइए, तो 2 3 बाहर, 3 3 जा 9 और अंदर बचता है 3 into 5. तो दिस इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया इसका हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. कि बस इतना ही आंसर है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं. एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, a park is in the shape of quadrilateral ABCD, has angle C equal to 90, AB equal to 9, BC equal to 12, CD equal to 5, AD equal to 8. How much area does it occupy? So this is 12.2, क्वेश्चन नंबर 1. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल C है 90 डिग्री का, AB है, BC CD सारे साइड्स दिए हुए हैं, ड्रॉ करते हैं. BC है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर होगा. BC के बाद CD है 5, C से D 5 है. फिर
ए से बी, ये डी हुआ, ए से बी है ए बी, बी सी 12, सी डी 5, ए बी 9, बट सी पे 90 डिग्री का एंगल है तो ऐसा नहीं होगा। सी डी 5, ए बी 9, ए बी 9 मीटर, और फिर ए डी है 8 मीटर। तो कुछ इस तरह का, नॉट एक्यूरेटली बट इसी तरह का होगा। इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया सी पे 90 डिग्री है, बी से डी को आप जोड़ देंगे ऐसे। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द, देखो दो ट्रायंगल में बट गया ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, दो पार्ट में बट गया, दो ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसके लिए तीनों साइड चाहिए, दो साइड है। पीजीटी अगर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये साइड है, ये है, तो ये निकाल आएगा। तो पहले पीजीटी निकालते हैं। लिखे, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। इन राइट ट्रायंगल BCD by Pythagoras theorem, BD square equal to BC square plus DC square. तो BD square is not known, BC is 12 and DC is 5. So now it is BD square equal to 144 plus 25. BD square is 169. Therefore BD equal to 13. So we have the value, length of BD is 13 meter. अब एक एक करके हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। तो एट फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी या बी सी डी इक्वल टू हाफ बेस बी सी एंड हाइट डी सी। बेस है 12, हाइट है 5। मीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका निकालेंगे, इसमें हीरोन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एस कितना है, ये 9 प्लस 8 प्लस 13। ओके, द वैल्यू ऑफ एस इज 15। अब यूज करें फॉर्मूला। एस है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। 15 इंटू 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7, और ये 2। और आगे देखते हैं, इसको ब्रेक करें। 15 को 3 इंटू 5, 6 को 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। तो 2 कितने बार है, 2 बार। 8 2 रूट से बाहर, 3 है 2, एक 3 भी बाहर, और अंदर बचता है 5 इंटू 7, तो 6 रूट 35। 35 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना पड़ेगा, होगा 5.91 समथिंग, और आप इसको इनटू करेंगे तो आपको एक फिगर मिलेगा, और वो है 35.46।
ओके, इसको अप्रॉक्स में आप 35.5 भी लिख सकते हो। अब आप निकालें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 30 प्लस 35.5 एंड दैट इज 65.5 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। AB 3 है, BC 4 है, CDE 4 है। तो पहले ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल AB 3 सेंटीमीटर, AB के बाद दिया है BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, फिर CD 4, CD ये भी 4 सेंटीमीटर, और फिर AD है, AD है 5 और AC 5। तो ये ऑलरेडी दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें AB 3, BC 4, CD 4, AD 5 एंड AC 5। तो इसको हिडन मेथड से ही दोनों निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग निकाले इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। S होगा A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, 12 बाई 2 S इक्वल टू 6। और फॉर्मूले में जाएं, S की जगह पे 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6, 3, 2, 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका आएगा, पेयर बनता है 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो पहले ट्रायंगल का एरिया है 6 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC का एरिया निकालना है। तो सेम मेथड को अडॉप्ट करेंगे आप, और अडॉप्ट करने पे देखिए क्या बनता है। S निकालेंगे पहले, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 4 प्लस 5 प्लस 5 बाई 2, 14 बाई 2, तो S इक्वल टू 7। फॉर्मूले में जाए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। S के जगह पे 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2। तो 2 2 है, इसका पेयर बनता है, एक 2 बाहर और अंदर 21। अब रूट 21 का रूट निकालेंगे तो आएगा 4.58। इसका आप इंटू करोगे तो आएगा 9, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 1 11, 4 2 जा 9, 9.16 मीटर स्क्वायर। दोनों का अलग अलग एरिया निकल आया।
अब दोनों को प्लस करें तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equal to 6 plus 9.16 15.16 equal to 15.2 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स है लगभग। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 and this is all for today. In the next video we will solve the other question. Thank you.